Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we talk about couple of searches. One is our linear search and another is the binary search. Okay, when you talk about search, you want to search an element in an array. You can do it using the linear search or you can use the binary search. Okay, binary search. In linear, what you do is you have, for example, an array. Okay, and it has elements in it, whatever elements we have, and you are trying to search it. Say for example, you first ask the user the key, that means what you want to search. He gives some elements, say for example 5. Then I go on with the array and start from the beginning, from I is equal to 0 up to the limit, up to the I'm asking user what you want to search. Okay, binary linear में क्या सोचते हैं? I'm telling you a second. Now if this is our linear search, we have an array. Okay, and it could be any very long array, and it has some elements in it. Okay, 1 2 3 4 5 6. For example, you are asking for the 5. Now what you go is, in the linear search, you go to the first element, you talk him, because this is my key is 5. You ask user, enter the key, that is what you want to search. Now he said 5, for example. Now you what you do in a linear search is you go from the beginning to the index 0. So you have to run loop from I is equal to 0 up to I is less than limit. You have to go up to the limit and ask everybody, are you equal to key? Is 1 equal to key? No. Then I plus plus. Are 2 equal to key? No. Go further. Is 3 equal to key? No. Is 4 equal to key? No. Is 5 equal to key? Yes. Stop it. When you have found equal to key, you will message that we have found it, and you will get out of the loop, because then there will be 100 elements or 200 elements or so on. You don't want to search that because you got it. So you should get out of the loop at the same time. So you break. At that point you break. When you found, you break. What you do maximum time is we use a flag. Initially we say flag 0. If the flag is 0, that means it's not there. Say for example, I told you to go to the market. If you find a particular biscuit and we have a box there, put 1 in it. If you have not found it, put 0 in the box. So now when I go and I want to see कि आपको मिला biscuit या नहीं, I will not do anything. I will just open that box. If there is 0, I will say you have not found the biscuit. If there is 1, I will say yeah, you have found it. So that's called a flag. The flag is a simple variable. Initially we put it 0, and if it is found somewhere, if the element is, you will make the flag at that time 1 and then break. You will make flag what? 1, right? And then break. If at the end I see flag is 0, that means it was never found. For example, you are finding out 7, which was not an array. So you ask everybody, are you 7? Are you 7? Are you 7? Are you 7? And we went out of the array and out of loop now, because our limit is over. We get out of the loop. The flag was initially 0, it stays 0. It has never gone into this found, because we have not found. So we will not put flag 1, we will not break. So it will run whole loop, all the iterations, and at the end say that it was not there. And the guy which is not there is a 7, so flag was 0. अगर 7 कहीं पे होता, for example 7 कहीं पे होता, तो इस the found, it would have founded it, then it would have put flag is equal to 1 and break. First do flag is equal to 1, then break, right? So at the end flag was not 1 0, it was 1. So we understood we have found it somewhere, and where we have found it, the I location would be there. जहां वो मिला होगा वहां I पहुंचा होगा, और I, we can say the location is the I. Array के हिसाब से I, हमारे हिसाब से I plus 1. This is linear search. This is what? In binary search, we don't do this way, because it's very very primitive way of searching. Say for example, आपके पास 10 लाख elements हैं and you want to search, and worst case में मानो वो last वाला बंदा है जो search कर रहा हूँ, लेकिन linear search क्या करेगी, वो 0 से शुरू करेगी. तो जितने आपके ये होंगे उतने आइटरेशन, अगर n नंबर्स आपके पास होंगे n आइटरेशन लगेंगे. So we call it big O of n. Big O is a, we find the complexity of an algorithm. हमें पता चलता है कि algorithm कैसा है, बेस्ट है, वर्स्ट है, कैसा है.
बेटर है दूसरों से या नहीं, वो हमें पता चलता है हमारे पास कुछ चीजें हैं, दैट्स कॉल्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन। हमें क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। उसमें हमारे पास बिग ओमेगा आता है, बिग थीटा आता है, ठीक है, और बिग ओ आता है। मैक्सिमम में बिग ओ करते हैं। और वर्स्ट केस हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वर्स्ट केस में क्या होता है कि अब एसिम्प्टोटिक में यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, वो आप एमसीए में समझोगे आप, जहाँ जब आप डिजाइन एल्गोरिथम पढ़ोगे, एल्गोरिथम के बारे में। उसमें एक चीज होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी मशीन बड़ी फास्ट है, ठीक है, और मैं अपना एल्गोरिथम अपने मशीन पे चलाता हूँ, वो बहुत फास्ट है। आपने एल्गोरिथम लगाया, हालांकि आपका एल्गोरिथम मेरे से अच्छा था, बेस्ट एल्गोरिथम था आपका ही, मेरा नहीं था, लेकिन आपने स्लो मशीन पे चलाया, उसको टाइम लग गया। हम बोल रहे हैं कि भाई आपका एल्गोरिथम अच्छा नहीं है क्योंकि उसको टाइम लग गया, लेकिन ये असल में मशीन थी, ये एल्गोरिथम नहीं था, ये मशीन थी जो फास्ट है स्लो थी। तो हम ये सारी चीजें हटा के हमें एक चीज चाहिए कि ताकि हमें पता चले कि बेस्ट एल्गोरिथम है कि नहीं। इसी को हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसमें सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हटा के हम बहुत सारे काम करते हैं। तो उसी में एक हमारे पास है बिग ओ। तो यहाँ पे जो बिग ओ, अगर इसको बोलेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लीनियर सर्च की, वो एन है, क्योंकि आपको एन टर्म्स तो लगेंगी ही लगेंगी। लेकिन वर्स्ट केस में किसमें? मानो आपका पहला एलिमेंट है 1 और आप 1 ही ढूंढ रहे हो, तो आपने एल्गोरिथम चलाया अपना लीनियर सर्च का, पहले एलिमेंट को बोला और वही मिल गया, और आप बोल रहे हो मेरा एल्गोरिथम बड़ा फास्ट है। ये असल में बेस्ट केस था, ये केस बेस्ट था, ये एल्गोरिथम बेस्ट नहीं था, ये केस बेस्ट था। तो अगर आपको टेस्ट करना है, आपको वर्स्ट केस में, आपको वर्स्ट केस में देखो, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट सर्च करो। अगर आपके पास 10 लाख एलिमेंट्स हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट आप देखो और फिर बताओ कितने टाइम्स लगते हैं, ठीक है ना? जैसे इंसान को बोलते हैं इंसान ऐसे बड़ा कूल दिखता है, लेकिन उसे बोलते हैं अगर टेस्ट करना है तो वो सफर में ले जाओ साथ, ऐसे पहचान में नहीं आएगा, जब सफर में जाएगा तब पहचान में आएगा, ऐसे तो प्रिटेंड करेगा ये अच्छा होने का, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बंदा था, ही सीम्स वेरी कूल, अब मैं उसकी गाड़ी में चला, सोरा जब हम पहुंच गए, एक मामूली बाइक वाला आ गया, थोड़ा सा नजदीक आ गया, अब ये बंदा उसके साथ गाली गलौज करने लगा। अब मैं देख रहा हूँ यार ये तो इतना कूल बंदा है, इसको क्या हो गया, यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ तो बड़ा मेरे कॉलोनी में कूल दिख रहा था, लेकिन हालांकि बाइक वाले ने टक्कर भी नहीं मारी, वो हल्का सा नजदीक आ गया और लिटरली उसको गाली, तो मैंने कहा भाई क्या हो क्या गया कूल का। तो ऐसे पता नहीं चलता, वर्स किसे पता चलता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम वर्स किसे पता चलेगा, तो अब लास्ट वाला देखो, उसमें एन टर्न्स लगेंगे, और जो अभी हम बाइनरी सर्च करेंगे इसके बाद, ठीक है ना, क्या करेंगे, वो बहुत ही जबरदस्त इसके हिसाब से है हमारा एल्गोरिथम बाइनरी सर्च का। लेकिन उसमें एक प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट में पहले एक शर्त है कि एरे आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए, और अक्सर हम अपने डेटा सॉर्टेड रखते ही हैं, तो इसलिए बाइनरी लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च का अगर बिगो देखेंगे, दैट इज लॉग टू द बेस ऑफ एन, उसका एन था, इसका लॉग टू द बेस एन है। यानी कि अगर आपके पास 16 एलिमेंट्स है, कितने हैं, 2 raised power 4 equals to 16, ओके। सो यानी कि आपको सिर्फ 4 टर्न्स लगेंगे, अगर मैक्सिमम 16 एलिमेंट्स है आपको सिर्फ 4 टर्न्स लगेंगे। अगर आपके पास 2 raised power से फॉर एग्जांपल 20 है, दैट इज 10 लाख समथिंग समथिंग, अगर आप लीनियर सर्च करोगे ना तो उसमें उतने टर्न्स लगेंगे, और बाइनरी सर्च में आपको सिर्फ 20 टर्न्स लगेंगे। आसमान जमीन का फर्क है, 10 लाख पता नहीं क्या, और 20, जस्ट 20 टर्न्स वर्स्ट केस में, ठीक है। तो जितना बड़ा डेटा है आपको मैक्सिमम यहाँ पे बाइनरी सर्च में 30 टर्न्स लगेंगे, वहां करोड़ों टर्न्स लगेंगे लीनियर सर्च में, लेकिन लीनियर सर्च पॉसिबिलिटी नहीं है सर्च करना जब बड़ा डेटा होगा। लेकिन एक चीज है कि प्रीरिक्विजिट क्या है इसमें, सॉर्टेड। अब बाइनरी सर्च कैसे काम करता है वो इसके बाद हम काम करेंगे, पहले हम लीनियर सर्च को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पास चॉइसेस आएंगी फिर से, कंट्रोल सी, 6 रिवर्स था, इसको छोड़ो, पहले बाइन से लीनियर सर्च करेंगे, हाँ इसको तो बंद ही रखो फिलहाल, प्रेस 6, यहाँ लीनियर सर्च ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है ना, 5 लीनियर सर्च का और 6 बाइनरी सर्च का।
बाइनरी सर्च इन एरे और लीनियर सर्च इन एरे। तो आप लीनियर सर्च करना चाहते हो, बाइनरी सर्च करना चाहते हो, इसको भी बंद ही करता हूँ फिलहाल में, ठीक है। 5 और 6 पे लीनियर और बाइनरी सर्च आ जाएगा। सो केस यहाँ पे कौन सा आएगा मुझे, 5, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और ये जो वाला है केस 5, इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च, और इसमें हम करेंगे स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, फिर बाइनरी लिखते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसको एस पहला वर्ड कैपिटल करते हैं, इट्स कॉल्ड केमल केसिंग, बाइनरी सर्च, ठीक है। अब हाँ केस 6, तो ये लीनियर सर्च हम करेंगे, हम कंट्रोल C, वी गो डाउन हियर, और यहाँ पे हमारा है लीनियर सर्च फंक्शन, ठीक है जी। कंट्रोल V, पहले वाइड लिखेंगे हम, रिटर्न टाइप इज वाइड, हाँ जी। इसको करना वाइड लीनियर सर्च, ठीक है ना, and it has to be caught into the array with a box, right। ये लीनियर सर्च हमारे पास है, और इसका पहले हम प्रोटोटाइप लिखेंगे उधर ही, उठा के कंट्रोल C, इसका यहाँ पे हम लिखेंगे इसका प्रोटोटाइप कंट्रोल V, दिस इज लीनियर सर्च, ओके, इंटू AR, बिल्कुल ऐसे ही कंट्रोल V, और ये बाइनरी का करेंगे हम, बाइनरी सर्च, ठीक है, डालेंगे, ओके। ये लीनियर सर्च हमारा है, इसमें पहले ही मेरे को पाई चाहिए की, हाँ की चाहिए, और फ्लैग चाहिए, उसमें 0 रखूंगा पहले, फ्लैग 0 मींस एलिमेंट इज नॉट फाउंड, हम पहले स्टार्ट में फ्लैग 0 रखते हैं, और की चाहिए ताकि यूजर को पूछेंगे क्या सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। जब हम सर्च करना चाह रहे हैं, इससे पहले कि मैं यूजर को बोलूं कि तू मुझे की दे, कौन सा सर्च करें, मुझे देखना कहीं एरे एम्प्टी तो नहीं है ना, तो सर्च क्या करना है, वो कैसे पता चलेगा एरे एम्प्टी है, क्योंकि हमारे पास लिमिट है। अगर आपने एरे में कुछ नहीं किया है तो लिमिट 0 होगा, जो लिमिट है इसको इनिशियली हम 0 रखेंगे, इनिशियली क्या रखेंगे हम 0, इनिशियली हम रखेंगे 0, नहीं इनिशियली ये 0 है, उसके बाद जब आप ये चलाओगे सिस्टम, इंसर्ट एलिमेंट्स करोगे, वहां आप यूजर को पूछोगे, जब इंसर्ट एरे आप पहला केस करोगे, उस वक्त आप यूजर को बोलोगे कि भाई आपको कितना लिमिट चाहिए, ठीक है ना, ये ना इंसर्ट ऑपरेशन में आप पूछ रहे हो कि लिमिट, पहले लिमिट कहाँ पे पूछा हमने, अच्छा वो पहले ही हम बोल रहे हैं मेन में ही, ठीक है ना, तो हम पहले लिमिट उसको बता रहे हैं, तो लिमिट उसने दिया हुआ कुछ 5, 6, 7 या 8 वटावर 10, 50 कितना 100 तक, है ना। हो सकता है कि बाद में इसने डिलीट एलिमेंट के डिक्रीमेंट वो 0 बन गया, है ना। तो इसलिए जब हम डिलीट कर रहे थे, यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन जो हमने की, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोजीशन जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू लिमिट। अब अगर लिमिट पहले ही 0 है ना, तो इसमें हमें ये चीज करना चाहिए था, इसमें भी ये बोलना चाहिए था कि अगर अगर फॉर एग्जांपल लिमिट 0 है, फिर तो हमें करना ही नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे जो है इससे पहले कि मैं पोजीशन मांगू, मुझे बोलना चाहिए कि इफ लिमिट इक्वल टू 0, हाँ हाँ, लिमिट इक्वल्स टू 0, अगर लिमिट 0 है, अगर क्या है लिमिट 0 है, फिर तो करना ही नहीं चाहिए, फिर तो आपको प्रिंटफ कहेंगे, प्रिंटफ \n array is empty, ओके। यहाँ पर भी \n करो, और बाकी तो तब करना चाहिए जब अगर ये नहीं होगा, तो मैं वहीं पे रिटर्न करूंगा, आई कैन रिटर्न,
लेकिन अब मसला यहाँ पे कि मैं रिटर्न वाइड कर रहा हूँ ना, सो इसलिए मैं रिटर्न नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पे एल्स में ये सारी चीजें करूंगा, आई विल डू इट इन एल्स, ठीक है ना। और ये एल्स वाला ब्रेस जो है यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा। ये सारी बातें तभी होंगी अगर लिमिट है कुछ। जब लिमिट ही नहीं है तो जीरो एलिमेंट्स है, आपने डिलीट किए हुए हैं सारे, मानो आपने 2 एलिमेंट्स दिए, उसने डिलीट किया, उसके बाद दोनों ही डिलीट किए, अब तो जीरो लिमिट है, अब फिर से बोल रहे डिलीट, तो ये नहीं करना चाहिए ना। इसी तरीके से यहाँ पे लीनियर सर्च करोगे तो पहले आप ये देखो कि लिमिट जीरो तो नहीं है। इफ इक्वल टू जीरो तो क्या कहोगे आप, प्रिंटफ, एग्जैक्टली। क्या हो रहा है इसको, \n arrays empty \n, और ये रहा आपका ये, दैट्स इट। और वरना बाकी जो भी आपको काम करना है वो किस में करोगे, एल्स में करेंगे आपको काम। यानी कि अगर लिमिट है कुछ तो सर्च करना चाहिए। तो अब मैं यूजर को बोलूंगा आप क्या सर्च करना चाहते हो, है ना। अब उसे की वी कॉल एज ए की, printf \n enter key to search, ठीक है जी। वो दे देगा वो की, और हम वो किस में पकड़ेंगे, स्कैन करेंगे हम, स्कैन ऑफ पर्सन डी डबल क्लोज खामा एम्परसेंड ऑफ की मेरे पास वेरिएबल है ना उसमें। अब मैं लूप चलाऊंगा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लिमिट, एंड तक चलाऊंगा, है ना। i प्लस प्लस क्या बोलूंगा मैं, इफ एयर ऑफ i, इफ एयर ऑफ इक्वल टू की। अगर आपका एयर ऑफ आई यानी कि एयर ऑफ 0 क्या वो की के बराबर है, फिर एयर ऑफ 1 एयर ऑफ 2 जब तक मिलेगा नहीं, अगर वो की के बराबर कोई मिल गया लिमिट तक का मैं करूंगा ना, तो पहला काम मैं जो करूंगा मैं फ्लैग क्या बनाऊंगा, मैं घुस गया ना उधर, फ्लैग इज इक्वल टू 1 एंड आई विल ब्रेक, सिंपली ब्रेक आउट ऑफ द लूप, ब्रेक आउट ऑफ द लूप, एंड दैट्स इट। वरना अगर अगर ये बराबर नहीं है, अगर एयर ऑफ आई फॉर एग्जांपल फर्स्टली आई वाज 0, अब एयर ऑफ 0 वो की के बराबर नहीं है, तो ये चीज चलेगी नहीं, तो आगे लूप चलेगी, इट विल गेट आउट ऑफ, ये इफ तो चलेगा ही नहीं, ये इफ कभी चलेगा ही नहीं, तो लूप चलेगी वापस, इस फॉर के पास i1 बनेगा, फिर करेगा चक, फिर i2 बनेगा, 3, फर्ज कीजिए इसमें था ही नहीं कभी ये एलिमेंट इस एरे में, तो जब तक ये i1 0 से लिमिट तक चलेगा ना ये सारा, ये इफ कभी चला ही नहीं, तो फ्लैग आपका क्या रहा, 0 था तो 0 ही रहेगा। तो अब मैं बाहर जब फॉर लूप से बाहर आऊंगा, यहाँ पे ये ना फॉर लूप, इससे मैं जब बाहर आऊंगा, ये फॉर लूप है और ये एल्स है ना, ये एंड ऑफ फॉर लूप है, और ये वाला है एंड ऑफ एल्स, ठीक है। इसके एल्स के बीच में ही करना है ना, फॉर लूप से बाहर। इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, अगर फ्लैग 0 है उसका मतलब है मिला printf element not found है whatever, element not found in array, ठीक है। वरना इसका else, इसका एलिमेंट मिल गया, कंट्रोल सी, will say percentage d element found at percentage d location, ठीक है ना, कामा। पहला तो मेरा की है जो मैं ढूंढ रहा था, और दूसरा देखना क्या आई है नहीं है, इसके बारे में सोचते हैं। देखिए लेट अस थिंक अबाउट इट कि मतलब लोकेशन कहाँ पे होगी। देखिए ये मेरी एरे है, फर्स्ट केस इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है, 0 1 2 3 4, और मैं ढूंढ रहा हूँ 4 को, किसको, से फॉर एग्जांपल फाइंड 4,
इनिशियली आई विल बी 0, लिमिट तक चलेगा ना। क्या एयर ऑफ आई की जो मेरी है वो 4 है, क्या एयर ऑफ आई इज व्हाट, आई इज 0, एयर ऑफ आई इज 1, क्या 1 बराबर है 4 के, नहीं है, आई प्लस प्लस, नाउ आई विल बिकम 1, आई विल बिकम 1। क्या एयर ऑफ आई, this thing, this statement, क्या एयर ऑफ आई दैट इज एयर ऑफ 1, नाउ आई इज 1, क्या वो बराबर है की इज 4, क्या एयर ऑफ 1 दैट इज 2, क्या वो बराबर है 4 के, नहीं, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ये इसमें घुसेगा ही नहीं, ये लूप यहां से वापस आएगी इस फॉर के पास और आई प्लस प्लस होगा, अब आई बनेगा 2। क्या एयर ऑफ 2, क्या एयर ऑफ बराबर है 4 के, नहीं है, आई प्लस प्लस, ये चीज चलेगी नहीं, ये वापस आएगा, आई बनेगा कितना अब 3। एयर ऑफ आई दैट इज 3, एयर ऑफ आई, क्या एयर ऑफ आई बराबर है 4 के, हाँ है, फ्लैग 1 ब्रेक, जो ही ब्रेक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया, उस वक्त आई का वैल्यू कितना है 1 3, ठीक है ना, तो वही तो पोजीशन है, एरे के हिसाब से 3 है मगर हमारे हिसाब से क्या है 4, हमारे हिसाब से 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं आई करूंगा वो 3 बोलेगा, वो एरे के हिसाब से है, लेकिन यूजर के हिसाब से क्या है 4, सो आई शुड से आई प्लस 1, क्योंकि जब ये बाहर निकला उसी वक्त आई वहीं पे था, क्योंकि तभी तो एयर ऑफ आई बना की के बराबर निकला ना, वही तो होगा ना, आई तो उसके बाद चेंज नहीं हुआ कहीं, ठीक है, आई का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि इसने ब्रेक मारा, जब ब्रेक मारा आई उस वक्त 3 अगर था तो 3 रहेगा। अब परसेंटेज डी एलिमेंट दैट इज द की जो आप ढूंढ रहे थे, दैट इज 4 यहाँ पे आएगा, पोजीशन 3 आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से है ना 4th लोकेशन पे, 1 2 3 4th लोकेशन, सो हम मैं कहूंगा यहाँ पे आई प्लस 1, तो यहाँ पे फिर 4th लोकेशन आएगी, अगर मैं आई कहूंगा तो वो 3 लोकेशन आएगी, लेकिन वो एरे के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से ये चौथे लोकेशन पे, ठीक है, सो आई शुड से हियर आई प्लस 1, आई प्लस 1, ठीक है, आई थिंक दैट्स इट, लेट्स गिव इट अ गो, अगर एरर्स नहीं है इसको, हाँ यहाँ पे कुछ मसला है, ये जरूरत ही नहीं है मुझे, ये इफ का ये जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट है, अब इफ हो गया था इसके एल्स का नहीं आया था ना, ब्रीज प्रॉब्लम थी। अब बाइनरी सर्च हमने बनाया, अभी लिखा है लेकिन है नहीं कहीं पे, बाइनरी मत करो, एंटर द एरे से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 5 हमारे पास लोकेशंस हैं, ओके, 1 टू इंसर्ट एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट दे दो 1 2 3 4 5 और 1 टू कंटिन्यू, अब लीनियर सर्च करो, दैट इज 5th एलिमेंट दो, आप 5 ढूंढना चाहता हूं मैं, ठीक है, द 5th एलिमेंट इज फाउंड एट 5th लोकेशन, परफेक्टली आया ना। अब इसमें आइटरेशन भी देखेंगे हम कि कितनी आइटरेशन मुझे लगी, कितनी आइटरेशंस हमें, कितनी टर्न्स लगी ना इसमें ढूंढने में, उससे पता चलेगा ना कि बाइनरी सर्च बेटर है कि नहीं, इससे जितनी बार लूप चला, कितनी बार इसने कंपैरिजन किया एरे के साथ, है ना, ये एरे मेरे पास है, इसको तो अगर लास्ट वाला बंदा है वर्स्ट केस है, इसको हर बार ही करना पड़ेगा, तो अगर n एलिमेंट्स है तो n टर्न्स लगेंगे, है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, टर्न्स, क्या रखूंगा, वो रखूंगा मैं 0 इनिशियली, जो ही ये लूप में गया इसने आइटरेशन मारी, मैं टर्न को क्या करूंगा प्लस प्लस, टर्न्स को जितनी बार इसने किया उतनी बार, ठीक है, और लास्ट में मैं यहाँ पे एंड ऑफ एल्स के यहाँ पे मैं करूंगा काम, टर्न्स प्रिंट करूंगा, ठीक है, ये एल्स के बाहर ही होगा, प्रिंटफ \n number of turns equals to percentage, ठीक है ना, मैं टर्न्स पता चलेगा कितने टर्न्स लगे, ठीक है,
ये भी वाला हम मैं पहली बार देखा ऐसे। क्या पर मतलब ये कोई ही नहीं करता है ऐसे, टर्म्स भी दिखाता है। टर्न्स तो करनी पड़ेगी क्योंकि फिर उसी से एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी में पता चलता है ना बाद में। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक। पहली बात मैं करता हूँ इंसर्ट एलिमेंट्स में, पहले में 1, दूसरे में 2, दूसरे में 3, 1। अब मैं 4 टू डिलीट करता हूँ, एंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू डिलीट, मेरा 1 का, ठीक है। अब उड़ गया पहला, अब 2 एंड 3 रह गया, 1 टू कंटिन्यू में फिर से डिलीट कर रहा हूँ, व्हाट इज 4 टू डिलीट, एंटर पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू डिलीट, से 1 उड़ गया, अब खाली 1 रहा, ओके। 1 टू कंटिन्यू, 4 टू डिलीट, ठीक है, एंटर पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू डिलीट एरे, मैं कह रहा हूँ 1। अच्छा अब वो वाला देखो, अब हो गया खत्म, डिस्प्ले ऑपरेशन में कुछ नहीं दिख रहा ना। अब मैं फिर से डिलीट करना चाहता हूँ, 4th डिलीट, एरे इज एम्प्टी, आ गया ना वो लिमिट वाला किस्सा, क्योंकि लिमिट 0 था। और यही किस्सा हमें चलेगा किसमें, यही चीज हमें चलेगी लीनियर सर्च में। मैं लीनियर सर्च करना चाहता हूँ 5, एलिमेंट तो है नहीं कुछ, एरे इज एम्प्टी, सर्च क्या करेगा, ठीक है ना। सो 1 टू इंसर्ट, 1 टू कंटिन्यू, अब मैं एलिमेंट्स डालूंगा इसमें, 1 टू इंसर्ट एरे, से फॉर एग्जांपल इंसर्ट ऑपरेशन, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा मैंने एलिमेंट्स पता नहीं क्या किया, एक मिनट, आई डोंट रिमेंबर मैंने एलिमेंट्स दिए, लेट्स रन अगेन F5। अब क्या कर रहा हूं मैं काम, मैं एलिमेंट्स दूंगा फॉर एग्जांपल 10, लिमिट दूंगा मैं 10। अब इंसर्ट करेंगे, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। प्रेस 1 टू कंटिन्यू, मैं पहले लीनियर सर्च करूंगा, दैट इज 5। अब बोलेगा की, मैं दे रहा हूँ 11 जो कि उधर है नहीं, तो एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे, नंबर ऑफ टर्न्स लगे 10, है ना, क्योंकि 10 लगे, क्योंकि मेरे पास लिमिट 10 था ना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बराबर इसको लगे, उधर मिला नहीं 10, क्योंकि 10 लिमिट था, तो इसने 10 के 10 एरे के छान मारा, वहां मिला नहीं उसको, है ना। प्रेस 1 टू कंटिन्यू, अब मैं लीनियर सर्च करूंगा 5 एंड मैं एलिमेंट दूंगा 10th लास्ट वाला, तो इसको 10 टर्न्स लगेंगे सीधे, ये वर्स्ट केस है ना, ये अभी वर्स्ट केस में इसको 10 लास्ट वाला ढूंढना है। सो 10 एलिमेंट फाउंड एट 10 लोकेशन, अबाउट टर्न्स इज 10, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में इंप्रूव होगा, बहुत मतलब इसमें तो जब छोटी एरे होती है तो उसमें तो कोई मसला नहीं, उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन जब एरे लाखों में आ जाती है डेटा, तो बाइनरी सर्च बहुत इफेक्टिव हो जाता है। वेबसाइट्स में भी होते हैं ना ये एग्जैक्टली, लेकिन वहां पे जो सर्च, अब जैसे गूगल आप करते हो, गूगल में पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, मतलब अनइमेजिनेबली लार्ज डेटा, ये ऐसा डेटा है कि आप सुई मांग रहे हो, लिटरली आप सुई मांग रहे हो समंदर से, ठीक है। तो अगर हमने एल्गोरिदम जो है ना हमारे पास, हमारे बहुत सारे जबरदस्त एल्गोरिदम्स हैं, जो पढ़ोगे एमसीए के अंदर आप पढ़ोगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, वहां आपको पता चलेगा कि हमने कितने खूबसूरत एल्गोरिदम बनाए कि आप गूगल को सर्च दे रहे हो, उधर विद इन सेकंड से वापस दे रहा है। अगर हम अपने पुराने एल्गोरिदम्स लगाएंगे ना, तो लिटरली आप गूगल को पूछोगे ना कि डेटा, इट विल गिव आंसर बैक एटलीस्ट 10 ईयर, इसको 10 ईयर लगेंगे, इतना डेटा है, इसको 10 साल लगेंगे, उसके बाद आपको आंसर आएगा कि भाई साहब ये है, और गेटिंग सो। लेकिन एल्गोरिदम्स ये तो एरे के ऊपर है, लेकिन हमारे पास जो है डेटा के ऊपर, जो हमारे पास बिग डेटा है, डेटा माइनिंग हम करते हैं, उसके अंदर जो हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो जबरदस्त होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। एनीवेज, लेट्स गो ऑन द बाइनरी सर्च ना। बाइनरी कैसे काम करेगा, अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। बाइनरी सर्च में क्या करता है काम, ये एरे है, ठीक है। बाइनरी से पहले अगर आपके पास कोई बुक है, मानो मेरे पास बुक है, आपके पास है कोई बुक उधर, फर्ज कीजिए ये बुक, इसमें 10,000 पेजेस है, कितने पेज हैं, मैं पहला काम जो मैं करूंगा वो मैं इस बुक का मिड निकालूंगा, इस बुक का निकालूंगा, लेकिन शर्त ये है कि ये सॉर्टेड होनी चाहिए, अगर सॉर्टेड नहीं है, पेज नंबर सॉर्टेड होते हैं ना, अगर सॉर्टेड नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा एल्गोरिथम। एग्जैक्टली, अगर 10,000 है, 5,000 इधर, 5,000 इधर और बीच वाला इधर, ठीक है। अब मैं इससे चेक करूंगा मेरी की, इससे जो मैं की ढूंढ रहा हूं, मैं इससे मिड, ये जो मिड मैंने निकाला, मैं कहूंगा भाई साहब ये हो गया पहला पेज जो 0 है, वो हो गया लो,
और जो लास्ट वाला पेज है वो गया हाई, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 वो निकलेगा मिड। क्या निकला? अब 10,000 पेज इधर है, मानो 10,000 इधर है, मानो 20,001 पेजेस इक्वल, तो 10,000 इधर 10,000 इधर 1 यहाँ पे। अगर मुझे लास्ट वाला एलिमेंट ढूंढना है, ये लास्ट पेज ढूंढना है मुझे, 20,000 साइज है, लीनियर सर्च क्या करेगा, वो पेज नंबर 1 से शुरू करेगी, लीनियर स्ट्रेट लाइन इन लीनियर फर्स्ट, क्या तू की के बराबर है, क्या तू की के बराबर है, उसको बराबर 20,000 टर्न्स लगेंगे, है ना, इट विल टेक 20,000 टर्न्स और लास्ट में बोलेगा हाँ जी मिल गया। बाइनरी सर्च क्या काम करता है, बाइनरी सर्च मिड निकालता है। हाउ वी गेट द मिड, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय, तो पहले हमारे पास लो होगा विच इज इक्वल टू 0, हाई होगा विच इज इक्वल टू लिमिट माइनस 1, क्योंकि लिमिट मुझे बताएगा एंड जो होगा वो एरे के बाहर होगा ना, उसका -1 दैट इज द हाई, ये हाई वो लो, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू मिड, दिस मिड। ठीक है, अब मैं मिड से पूछूंगा क्या तू मेरे एलिमेंट के बराबर है, की के बराबर है, ठीक है, अगर ये है, अगर ये है पहले सॉर्टेड होनी चाहिए, अगर सॉर्टेड नहीं तो फिर तो काम करेगा ही नहीं। अब अगर ये जो मिड है ये मेरे की के बराबर है तो मिल गया, अगर नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है कि जो मेरी ये की है जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मिड से बड़ी है, मिड से फॉर एग्जांपल दिस वाज पेज नंबर 10, ओके, और जो आप ढूंढ रहे हो वो 20 है, वो 20 10 के इधर होगा, इधर होगा, हाई वाले में होगा। अगर आप 5 ढूंढ रहे हो किधर होगा, लो वाले में। फर्ज कीजिए हमारे पास 20,000 की एरे है, ठीक है, और ये बीच वाला जो है ये 10,000 पे आ गया, और 10,000 एरे इधर से है, 10,000 एरे इधर से है, एक कम मानो, ठीक है, ये बीच में आ गया। अब अगर मेरी जो की है वो इस 10,000 से ज्यादा है, दैट मीन इट हैज टू बी हियर, इट हैज टू बी इन दिस लोकेशन। तो अगर ऐसा है तो क्या मुझे इस 10,000 में ढूंढना है, तो पहली ही आइटरेशन में जो सिंगल आइटरेशन है, पहली आइटरेशन लगेगी उसमें जो ये 10,000 की जो सर्च है ये रिड्यूस हो गई, ये मुझे करना ही नहीं अब, ठीक है। अब मेरी एरे जो है वो ये है खाली, ये 10,000 वाले जिसे मुझे ढूंढना है। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मेरा लो बनेगा ये, हाई अपना ही रहेगा, अब लो रहेगा ये, व्हाट विल बी लो, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी लो, ये मिड था, हाँ, अब लो इधर आएगा ना क्योंकि एरे मेरी ये है, अब ये मिड था क्योंकि मेरा जो ढूंढ रहा हूं जो मैं वो मिड से यहाँ है राइट साइड, इसको निकालेंगे पहले, लो किधर, लो मेरा था ना इधर, लो 0 पे था, अब लो विल बी मिड प्लस 1, क्योंकि जो अगर ये मिड है पेज नंबर फॉर एग्जांपल 70, अब 71 मेरा लो होगा, अब यहां से शुरू है ना, अब ये लो है और ये हाई है, हाई तो अपना ही है, अब मैं इसको दो हिस्से करूंगा, ठीक है ना, मानो ये वाला पेज वो निकल गया, अब इधर 5,000 इधर 5,000 क्योंकि 10,000 था ना, हाँ, लो और हाई। अब अगर मेरा जो एलिमेंट है, मैं अब मैं जो मिड है मैं इससे पूछूंगा क्या तू तो की नहीं है, इससे पूछ रहा हूँ मिड से, अगर है तो मिल गया, अगर नहीं है तो अब मुझे देखना है क्या मेरा जो ये की है वो मिड के लेफ्ट है या राइट, मानो ये लेफ्ट है, अगर ये लेफ्ट है तो ये 5,000 पेजेस अब ढूंढ, तो सेकंड आइटरेशन में 5,000 पेजेस, तो डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, आई एम डिवाइडिंग एंड कॉन्कर। अब मुझे खाली 5,000 पेज, मगर जो ये मिड था अभी लो मेरा यहाँ पे था, है ना, और हाई बिल्कुल लास्ट पे था, है ना, अब जब मेरा इसमें है अब लो तो उधर ही रहेगा लेकिन हाई इधर आएगा, मिड -1, अब लो प्लस हाई मिड -1, ठीक है, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करेंगे वो बिल्कुल इसका मिड निकलेगा, और यही करते 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 एंड पे जब मुझे मिलेगा ना वो बिल्कुल वही मिड होगा जहां मुझे मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल करेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें तो कम टाइम लग रहा है, ये हर एक आइटरेशन में हो रहा है ना ये चीज, अगर 20,000 एलिमेंट है 20,000 आपको पहली आइटरेशन में ही 10,000 एलिमेंट का खत्म, दूसरी आइटरेशन में 5,000 आइटम खत्म, तीसरी आइटरेशन में, है ना, एग्जैक्टली जहां मिड पहुंचता है वहीं पे जहां पे मिला। इसका बेस्ट केस ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट्स है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 for example. So this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है ना, 0 to 9 elements मेरे पास है. लो इसमें है. So what will be low equal to? लो equal to 0. Low will be equal to 0. What will be high equal to? limit minus 9. Yes, limit minus 1 क्योंकि total elements limit मेरे पास 10 था. So अगर 10 है वो array से बाहर है ना limit. So that means high is equal to low limit minus 1, that is 9, and low is 0. What will be mid equal to? Low plus high divided by 2. That is 0 plus 9 divided by 2. That is 9 divided by 2. That is 4.5. चूंकि इंटीजर डिवीजन है तो पॉइंट कटेगा खुद ही, तो 4 निकलेगा. सो दिस 4 इज द मिड. मान लीजिए मिड पे कौन है? 5 है. अगर आपकी की भी 5 है तो ये हो गया बेस्ट केस. तो पहली आइटरेशन में निकलेगा, हो गया, मिल गया. लेकिन हम वर्स्ट केस लेंगे, फॉर एग्जांपल 10 हम लेंगे. अब आई वांट टू फाइंड द 10. ठीक है. अब मेरा मैं जो पहला काम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले मैं लो रखूंगा 0, हाई रखूंगा लिमिट -1, और जब लूप लगेगी हमारे पास तो लूप के अंदर मैं क्या काउंट करूंगा काम, मैं पहले मिड निकालूंगा. दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. दैट इज मिड दिस टाइम इज इक्वल टू 4. पहली बार ये 4 निकला 4. अब की जो मेरे पास है, जो मैं ढूंढना चाहता हूं, दैट इज 10. ओके. अगर आपकी लीनियर सर्च होगी तो उसमें बराबर 10 टर्न्स लगेंगी. तो यहाँ पहली जब आइटरेशन लगेगी, इसकी पहली आइटरेशन लगेगी, मैं एयर ऑफ मिड के साथ, किसके साथ? एयर ऑफ मिड के से देखूंगा क्या ये बराबर की के है या नहीं. इफ करके ना, इफ एयर ऑफ मिड इज इक्वल टू की, क्या एयर ऑफ मिड दैट इज व्हाट 5, क्या वो बराबर है की के? नहीं. मत है. तो मैं यहाँ पे फ्लैग वगैरह या प्रिंट नहीं करूंगा कुछ, या ब्रेक नहीं करूंगा, वरना मुझे ब्रेक करना है और मैसेज देनी है कि मिल गया, है ना. प्रिंट करेंगे ना फाउंड. अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा काम, मुझे यही देखना पड़ेगा आपकी क्या जो आपका एलिमेंट है वो मिड के लेफ्ट है या राइट है. तो कैसे पता चलेगा? मैं कहूंगा इफ एआर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की. अगर ये ग्रेटर है की से, एआर ऑफ मिड में क्या है 5, क्या 5 बड़ा है 10 है? तो नहीं है. अगर बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 नहीं ढूंढ रहे थे, आप 2 ढूंढ रहे थे, तो है. तो अगर आप 2 ढूंढ रहे हो तो आपको ये वाली चीज नहीं ढूंढनी. अब आपकी एरे बनेगी ये वाली. अब ये वाला खास सारी सिक. ठीक है. तो उस सूरत में लो अपना लो ही रहेगा. हाई किधर आएगा? हाई इधर आएगा. मिड -1. मिड अगर 4 था, हाई अब 3 बनेगा, क्योंकि ये है ना एरे, है ना. सो मिड -1 आपका हाई बनेगा. जो आपका हाई है वो इधर आएगा 3 के पास, क्योंकि ये आपके एरे है ना. ये आपका लो, ये आपका हाई. ये कौन है? तो जो मिड था उससे -1. तो अगर ये सूरत है तो आपको एक चीज करना है, जो आपका हाई है वो आपको मिड -1 बनाना है. वरना अगर ऐसा नहीं है कि आपकी आप जो ढूंढ रहे थे, कौन जो आप ढूंढ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल की वो 10 है, तो वो इधर से है ना, उस वक्त ये एरे खत्म होगी. ये नहीं ढूंढनी है, इधर ढूंढना है. मिड +1. मगर कौन आएगा इधर? लो इधर आएगा, क्योंकि अब आपकी एरे ये है. हाई अपना ही है, हाई अपना ये है, लेकिन लो किधर आएगा? 6 के पास, इसके पास आएगा, जो 5 है यहाँ पे इंडेक्स. तो दैट इज मिड जो आपका था 4 + 1. नहीं आया समझ? देखिए ये आपके एरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So पहली बार मिड इधर है, आपका की जो है ना वो 10 है, और लो इधर है, हाई इधर है. ठीक है. अब आप क्या करना चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि पहला कंपैरिजन जो आप लगाओगे वो आप किसके साथ लगाओगे? वो मिड के साथ लगाओगे. क्या एयर ऑफ मिड बराबर है की के? नहीं है. अब आप देखो क्या एयर जो एयर ऑफ मिड है, क्या वो बड़ा है 10 से? अगर वो 10 से बड़ा है तो की आपसे छोटी है. तो की क्या है? छोटी. तो वो इधर से है. तो हाई फिर उठाना है, मिड -1 करना है.
लेकिन अभी आपकी जो की है वो 10 है, तो वो तो बड़ी है, तो हाई अपना ही रहेगा, लेकिन लो जो है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि आपकी एरे अब ये है ना, तो आपका लो बनेगा मिड प्लस 1 अगर आपका की मिड से बड़ा है, और तभी पॉसिबल है जब ये सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड नहीं होता तो मुझे कहाँ पता चलता इधर से किधर से, है ना, बात में आ रही है? ओके, लेट्स ट्राई टू डू इट। इसको घर में प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तब जाके होगा। हाँ, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा भाई, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में खोलूंगा, यहाँ पे बाइनरी सर्च करना चाह रहे हैं। तो जब आया ना ये प्रोग्राम, फिर ओवर कर दे सिस्टम पे, एग्जैक्टली सिस्टम पे प्रैक्टिस बाइनरी सर्च, कॉपी फिर तो खुद ही आएगा, कॉपी पे भी करना है, सिस्टम पे भी करना है, और फिर प्रैक्टिस भी करनी है, फिर रिविजन भी करने हैं। पहले वाइड है बाइनरी सर्च, और इसको क्या लगेंगे हम, डेटा टाइप इंट एंड अ बॉक्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे की रखेंगे, हाँ एग्जैक्टली, लो रखना है, लो किसके बराबर आएगा, 0 के, ठीक है ना, और हाई किसके बराबर आएगा, लिमिट माइनस, और हमें रखना है मिड, ठीक है। तो और ये कब तक करते जाएंगे हम, अर्ज कीजिए आपको मिला ही नहीं, अर्ज कीजिए आपको जो आप ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं। इसके लिए देखो यहाँ पे हम करेंगे, ये बात सोचेंगे ना कहाँ तक हम करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सो लो विल बी हियर, हाई विल बी हियर, ठीक है, 0 1 2 3, सो हाई इज 3, लो इज 0, so 0 plus 3 divided by 2, मिड निकलेगा बराबर 3 by 2, that is 1, 3 by 2 करेंगे ना, that is 1.5, ओके, 1 आएगा ना, सो ये मिड है आपका। आप ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढ रहे हो 5 जो कि उधर है नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तो 2, तो मिड के हिसाब क्या करोगे, इफ एयर ऑफ मिड इज इक्वल की, ये की है ना, क्या 2 की के बराबर है, नहीं है, मत है। तो एक चीज है कि आपका 5 जो है 2 के इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, सो लो इधर आएगा, लो कहाँ पे आएगा, 3 पे, अब लो 3 है, H4 है, सो 2 plus 3 इंडेक्स निकलेगा 2, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, वो 5 by 2, दैट इज 2, सो 2 आपका अब आएगा मिड, ये आपका मिड आएगा। क्या वो 3 बराबर है 5 के, नहीं है, तो 5 3 के इधर हो सकता है, सो लो मिड प्लस 1 बन जाएगा, सो लो और हाई पॉइंट कर रहे हैं इसको, सो लो भी 3, हाई भी 3, तो यहाँ पे मिड निकलेगा 3 plus 3 divided by 2, दैट इज 3, तो मिड भी यही आएगा, ठीक है। क्या ये 4 बराबर है 5 के, नहीं है, तो किधर हो सकता है, राइट साइड, सो अगर राइट साइड होता है लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, अब लो इधर आ जाएगा 5 के ऊपर, अब लो 5 पे है, सॉरी 4 पे है, और मिड 3 पे है, सॉरी एंड आपका हाई जो है वो कहाँ पे है, 3 पे, क्योंकि लो चला गया ना आगे, सो लो एंड हाई जब क्रॉस करेगा उसका मतलब कि आपकी एरे खत्म है, अब आपको ढूंढना नहीं चाहिए, अब आपको ढूंढना नहीं चाहिए क्योंकि एरे खत्म है, अब एलिमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि लो और जो हाई है वो क्रॉस कर गया, ठीक है, तो वहां तक आपको चलना चाहिए। ये कॉपी पे आप फिर से इसको ट्राई करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन कॉपी एंड ट्राई टू सी योरसेल्फ कि लो एंड हाई अगर इक्वल भी है वो ठीक है, हो सकता है वही वो लास्ट एलिमेंट है, दैट्स अ वर्स्ट केस, अगर मानो लास्ट एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो दैट्स अ वर्स्ट केस, लेकिन अगर ये क्रॉस कर गया उसका मतलब है कि अब एरे में एलिमेंट नहीं है, सो यू कांट गेट इट। और हमारे पास टर्न्स भी हैं, पता चलेगा टर्न्स भी हैं, टर्न्स इज इक्वल टू 0, कितनी टर्न्स लगे ना हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे काम कि कब तक चलेगा ये, व्हाइल लो इज लेस देन हाई,
जब तक लो लेस देन और इक्वल, अगर इक्वल भी है तब भी चलेगा, ठीक, अगर इक्वल भी है तब भी वो लास्ट मिनट हो गया ना। लेकिन जो ही क्रॉस करेगा, अब लो हाई से बड़ा है, हाई इधर गया, लो इधर गया, उसका मतलब है कि भाई साहब वी हैव ट्रैवर्स्ड ऑल एरे, ठीक है ना। तो पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो मिड निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई, है ना। पहले लो प्लस हाई को प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, वरना प्रेसिडेंस की परेशानी हो जाएगी ना। ये हाई को डिवाइड करेगा पहले 2 और फिर प्लस लो करेगा, वो गलत निकलेगा। सो पहले हम लो प्लस हाई करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 मिड निकलेगा, वाइल क्या ना। अब क्या लगाएंगे, इफ एयर ऑफ मिड, जो मिड आपने निकाला अगर वो आपकी की के बराबर है तो की तो पहले मांगनी चाहिए यूजर से, ठीक है। इसमें फिर से वो इफ लिमिट का किस्सा है ना। हाँ बिल्कुल, ये अगर लिमिट है ही नहीं तो सर्च क्या करेंगे, अगर लिमिट 0 है एरो तो एम्प्टी है, वरना एंटर की टू सर्च और वो की में डालेंगे हम, ठीक है ना। और ये इफ यहाँ पे खत्म होता है, ये एल्स बाकी सारा, ये एल्स बंद है यहाँ पे, हाँ ओके। ये आपका वाइल है, कौन सा वाला, ये वो में फंक्शन का आपका, ये मेन फंक्शन का है ना, इसका इसी का बाइनरी सर्च फंक्शन का। अच्छा जी, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे इसको, कि अगर पहले आपके पास लिमिट 0 है तो कुछ नहीं है, वरना आप ये काम करो पहले मांगो की, वो की के अंदर है। अब देखो क्या आपका मिड बराबर है की के, जो एयर ऑफ मिड है, हाँ नहीं किसी भी सूरत में आपको देखना तो वही है, चाहे मिड इधर है, अगर नहीं है तो मिड इधर है, आप इसके साथ करो। अब अगर नहीं है इधर है तो इधर है, अगर उधर है तो उधर है, जिधर भी है मिड के साथ कंपैरिजन लगेगा, क्योंकि हमारा मिड ही हम पहुंचेंगे मिड के पास ही, वही कंपेयर करेंगे हमारे की के साथ। अगर वो है किसी भी सूरत में, चाहे 2 टर्न के बाद, 3 टर्न के बाद, 4 टर्न के बाद मिला तो मिला, तो जो ही मिला, अगर मिल गया तो हम मिल गया ना वो, तो प्रिंट ऑफ करेंगे हम एग्जैक्टली परसेंटेज डी एलिमेंट फाउंड एट परसेंटेज डी पोजीशन, ठीक है। कौन सा एलिमेंट था, की, जो ढूंढ रहे थे, किधर मिला, मिड पे, जो मिड था। अब चूंकि मिड एरे के हिसाब से है, हमारे हिसाब से मिड प्लस 1, ठीक है ना। और आगे चलना चाहिए क्या, ब्रेक, आगे नहीं चलना चाहिए क्योंकि मिल गया ना, आगे क्यों चलेंगे, ठीक है। मिल गया तो आगे चलने की जरूरत है नहीं। और जो ही वाइल लूप के अंदर गया है, हम टर्न्स को प्लस प्लस करेंगे, है ना। टर्न चलिए ना, अगर यहां से बाहर निकला है तो ठीक मिल गया, तो इतनी टर्न्स ने की। अगर नहीं मिला है, अगर ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे एल्स इफ हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्स इफ कहेंगे कि अगर ये नहीं मिला इसके साथ, तो अब हम देखेंगे कि कहीं ये जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे थे मिड से इधर है कि इधर है, तो उस सूरत में हम कहेंगे इफ एयर ऑफ मिड, एयर ऑफ इज ग्रेटर देन की, अगर एयर ऑफ मिड किसके ग्रेटर देन की है तो क्या करना चाहिए, सोच के बताओ मुझे, आप बताओगे मुझे, हाँ सोचो और बताओ। अगर एयर ऑफ मिड ग्रेटर देन की है तो हमारा जो ये है, जो हमारा लो है, उसको जाएगा माइनस, पहले बताओ की किधर है, अगर मिड के राइट है या लेफ्ट है, अगर एयर ऑफ मिड जो है, मिड जो जहां पे मिड है वो खुद बड़ा है किससे, की से, की से, तो की किधर है, वो इधर है। पहले ये समझो ना मुझे, एयर ऑफ मिड जो है वो बड़ा है की से, तो की क्या है, की छोटी है ना, तो लेफ्ट होगा क्या राइट होगा एरे का, राइट कैसे होगा, राइट में तो बड़े होंगे ना। अगर मिड 5 है, 5 से बड़े इधर होंगे ना राइट में, आपका की छोटा है मिड से, वो किधर होगा, वो लेफ्ट में होगा ना, लेफ्ट में होगा, वो मिड के लेफ्ट में होगा। ऐसे क्या समझ रहे, देखो आप ये पढ़ो ना ये स्टेटमेंट, दैट मींस की हैज टू बी लेस देन 5, मगर की क्या है आपकी,
जैसे 10 है। जो की है वो छोटी है ना, अगर ये बड़ा है तो अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो आप मुझसे क्या हो, तो आप मुझसे छोटे हो। जी सर। तो अगर एयर ऑफ मिड जो है, मानो वहां पे 10 था, मिड मिड पे क्या था 10, 10 वो बड़ा है की से, तो हम्म, की क्या है फिर, छोटी तो की किस साइड होगी, लेफ्ट होगी राइट होगी, left, सीधी सी बात है। ये एरे है, ठीक है, हम्म, ये मिड है, मिड 5 है, हम्म, लेकिन की मिड जो एयर ऑफ मिड जो है निकलता है वो बड़ा निकलता है, बड़ा मैं कह रहा हूँ, क्या निकल रहा है, बड़ा, किससे, की से। तो अगर ये बड़ा की से है तो की क्या होगा, 5 से बड़ी होगी या छोटी होगी, छोटी, तो की होगी मान मान लीजिए 3, हम्म, तो 3 इस साइड होगा या इस साइड होगा, left side, तो लेफ्ट साइड से होगा। अगर लेफ्ट साइड से होगा लो उधर ही रखना है, उसके साथ नहीं हाँ, छेड़ना। हाँ, तो आपका जो हाई है वो किधर आएगा, इधर आएगा, इधर, मिड -1 आएगा, mid तो हाई इधर आएगा, ठीक है ना। minus, So what should I do in this case? Yeah, else if air of mid is greater than key, what should I do? और अब कोई height Exactly, I say high equals to mid minus, 1, ठीक है ना। Else if air of mid, is अब तो less than, else if तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो else में ही आएगा ना, या जी, तो बराबर होगा या तो बड़ा है, बड़ा फिर है, बचा क्या, जी सर, बचा तो यही छोटा है कि मिड छोटा है, उसका मतलब है कि मेरा जो एलिमेंट है वो राइट साइड है। राइट साइड, तो else में मुझे क्या करना चाहिए, जो लो है वो लाना चाहिए मिड +1, तो लो इधर लाना चाहिए ना, सिंपल एज इट इज। और फिर से वापस जाओ और मिड निकालो फिर से, अब चाहे आप इधर आए हो या उधर आए हो, अब फिर से मिड निकालो, मिड के साथ चेक करो, और अगर मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता है फिर से देखो कि कहाँ है, लेफ्ट है राइट है, अगर अगर राइट साइड है तो लो को इधर लाओ, ठीक है अगर ऐसे चला तो मतलब वो वाली स्टेट है, नीचे वाली नहीं चलेगी, ना। अगर इफ चला मिल गया ना फिर तो मिल गया, फिर तो मिल गया, फिर तो छोड़ो, ब्रेक मारो। अगर मारो, नहीं मिला तो इसका एल्स इफ चलेगा, लेकिन अगर ये नहीं चला तो ये चला, चले, ठीक है। तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में देखेंगे कि राइट है कि लेफ्ट है, अगर राइट है तो लो को उधर लाओ, अगर लेफ्ट में है तो हाई को इधर लाओ, मिड -1 करो, ठीक है ना। आई थिंक दैट्स इट, लेट्स ट्राई टू रन इट, देखते हैं। टर्न्स हमने बताया नहीं, ठीक है, टर्न्स भी बताने चाहिए ना साथ में, कि टर्न्स प्रिंट करने चाहिए ना, कितने टर्न्स लगे, वो लास्ट में करेंगे। टर्न्स प्रिंट जब सारा हो जाएगा, वाइल से बाहर बाहर आ जाएगा, इस एल्स के अंदर ही कर सकते हैं हम, printf \n number of terms is equal to %d, और एक एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे कामा टर्न्स, ठीक है ना। लिमिट हम लिखेंगे 16, क्या रखेंगे 16, सो अगर हम वर्स्ट केस लेंगे, क्या लेंगे, देखिए वर्स्ट केस में ये हमारी एरे है फॉर एग्जांपल, और इसमें 16 एलिमेंट्स है, कितने हैं, सो दिस इज 16 एलिमेंट्स, सो इंडेक्स विल बी फ्रॉम 0 to 15, ठीक है ना। तो 16 एलिमेंट्स मेरे पास है, जो लीनियर सर्च है उसमें 16 के 16 टर्न्स लगेंगे, 16 टर्न्स लगेंगे, लेकिन जो हमारा बाइनरी सर्च होता है दैट इज लॉग टू द बेस ऑफ n, जो आपका बिग O ऑफ लॉग टू द बेस n, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। जो आपका लीनियर सर्च है उसमें लॉग टू द बेस n, लॉग नहीं बिल्कुल n टर्न्स लगते हैं, अगर 16 है तो 16 टर्न्स लगेंगे, लेकिन इसमें लॉग टू द बेस n, लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ, हमें पता है 2 raised power 4 is equal to 16, इसको हम लॉग में ऐसे लिख सकते हैं, log of 16, log of to the base 2, to the base 2 of 16, that is whatever comes a raised power. What is 2, how much is 16, 2 raised power 4 is 16, so answer is 4, यानी कि 4 से ज्यादा टर्न्स लग ही नहीं सकते वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस जब आएगा 4 से ज्यादा टर्न्स नहीं लग सकते अगर 16 एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, इसी अगर मेरे पास 2 raised power, अगर मेरे पास 2 raised power 20 एलिमेंट्स अगर मेरे पास है, इसमें इतने अगर n इतना है ना, इतने टर्न्स लगेंगे। तो अगर इतने एलिमेंट्स का मैं बताऊंगा भाई, हमारे पास log टू द बेस n लगेंगे, log टू द बेस n है ना, log टू द बेस 2 ऑफ n, अगर n इतना है दैट इज 2 raised power 20, 2 raised power 20 is this n, that is 10 whatever 10 lakh something,
तो हमारे पास मैक्सिमम वर्स्ट केस में कितने लगेंगे 20 टर्न्स, लेकिन अगर आपका लीनियर सर्च होगा उसमें बराबर उतने टर्न्स लगेंगे, ठीक है। यू कैन सी द पावर योरसेल्फ। अब मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे पास जो एलिमेंट्स है 16 है, तो अब इंसर्ट करेंगे पहले, चलो मगर सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 1 लिखा मैंने लास्ट में, क्योंकि 1 पहले भी है लास्ट में भी है, ठीक है। चलो अब हम मानेंगे हमारे पास 15 एलिमेंट्स है खाली, ठीक है, 15 का काम करेंगे, ठीक है। 1 टू इंसर्ट, 1 टू कंटिन्यू से। अब हम लीनियर से करेंगे ना, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में 5 हम दबाएंगे, ठीक है, और की हम मेरे पास 15 है, क्या है, तो 15 अगर है 15 टर्न्स लगेंगे मुझे, बराबर 15 50 एलिमेंट्स फाउंड 50th लोकेशन, नंबर ऑफ टर्न्स इज 50। अब इसी को अगर मैं बाइनरी सर्च करूंगा 6 बाकी 15 मेरे को चाहिए, 4 से ज्यादा लग ही नहीं सकते उसमें, अगर 15 टर्न्स गए इसमें 4 ज्यादा लग ही नहीं सकते ना, तो इसमें जब करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इज 4। 50 एलिमेंट फाउंड है, 15 पोजीशन बराबर वही दे दिया, लेकिन टर्न्स कितने लगे, 4 उसमें लगे बराबर 15, 4 ही आइटम्स लगे ना, प्रोसेसर टाइम बच रहा है बहुत, उसमें 15 टर्न्स लग गए, 15 बार प्रोसेसर को काम करना पड़ा, तू तो नहीं है, तू तो नहीं है, तू तो नहीं है, एक एक करके पूछ रहा था। इसमें पहले बार में ही हाफ ऑफ द एरे खत्म, दूसरे एंड सो ऑन, समझ में आए। तो जितनी बड़ी एरे होगी बाइनरी सर्च में उतना फायदा आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आई होप यू गॉट इट। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। हाँ, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, ओपन अप द कॉपीज, ठीक है, कॉपीज खोलनी है, प्रैक्टिस करनी है, उधर देखना है कि क्या हो गया, एन क्यों चला गया इधर, एल ना लो क्यों चला गया इधर, हाई किधर चला गया। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम, इट इज वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इज वेरी सिंपल, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो टफ ही रहेगा ना, फायदा नहीं आएगा कुछ, ओके। एंड डूइंग ऑन कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कॉपी पे तो कुछ भी रन होता है, वहां एरर्स में होंगे तब भी रन होगा, आपको लगेगा ये ठीक है, मगर इसमें एरर्स होंगे, इसमें लॉजिकल एरर्स होंगे, उसमें टेक्निकल एरर्स होंगे, उसमें सिंटेक्स एरर्स होंगे, ठीक है, वो निकालेंगे, निकलेगा कब जब इस पे करो, ठीक है ना।